Hi everyone, this is Neeraj sir, and today we are going to discuss about the numericals of gravitation, state board numericals. These are okay. So there are around 6 numericals in your exercise, okay, and on what formula they are based, how we are going to solve. ये सब हम discuss करने वाले in a very small time. We are going to be a little quick, okay, because already we have done once. So, dear students, this is State Board, Chapter 1, Gravitation Exercise Questions. Okay. Question number 5, solve the following A, B, C, D, E, F, and G. In fact, 7 questions are there. Okay. So, first we'll be focusing on those questions जो आपके लिए they are based on these formulae. What are the formulae? Basically, they are based on kinematical equations. We know what are kinematical equations, right? Kinematical equations are three. The first one is V equal to U plus AT. Second one is S equal to UT plus half AT square. And the third one is V square is equal to U square plus 2AS. These are the pure kinematical equations. But in our chapter, we've got the same kinematical equations for free fall. Free fall is when an object falls purely under gravity. When an object falls under gravity, its acceleration becomes acceleration due to gravity and its initial velocity is zero. You know, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा और a will be taken as g. G is acceleration due to gravity. So अगर ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं the value of u as 0 and the value of a as g, हमें फ्री फॉल के तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन मिलते हैं. What is the first one? V is equal to, because u is 0, तो 0 आएगा and a is g, तो it will be v equal to gt, the first kinematical equation. Similarly, second kinematical equation, s is equal to half gt square. Remember, s is also the vertical distance which is called as the height. तो s की जगह पे आप h भी लिख सकते हैं. Third kinematical equation for the free fall becomes v square is equal to u square plus 2as, but u is 0, you know that. तो u जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा 2gs. ये तीन फ्री फॉल के इक्वेशंस है और ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. Now based on these formulae, we have got questions, two questions in our exercise. The very first question is in front of you on question number 5 ka A wala question. You can see on the screen, an object takes 5 seconds. Okay, so this is time to reach the ground from a height of 5 meter. This is vertical distance or height 5 meter on a planet. What is the value of g, small g, on the planet? आपको g का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, अब जरा आप पीछे देखो. फ्री फॉल, क्योंकि ऊपर से नीचे वर्टिकल डिस्टेंस में बॉडी गिर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो रहेगा आपका फ्री फॉल का, ये तीनों में से एक फॉर्मूला यूज करना है. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम गिवन है, आपके पास हाइट गिवन है. ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. सो अगेन चेक द फॉर्मूला विच इज मोस्ट सुटेबल. ओके, अगर आप देखोगे तो वर्टिकल डिस्टेंस s is known, time is known, and g is asked. So the most suitable formula here is the second formula. Second formula हम यूज करेंगे. Let us do the solution. Okay, solution हम कर रहे हैं. आपको फॉर्मेट तो पता है, हम स्टेट बोर्ड में भी ऑलवेज यूज द GTFSA फॉर्म. GTFSA is given to find formula solution answer. तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखते हैं, देखो. Time is given to us as 5 seconds. Vertical distance or height is given as 5 meter, and you're asked to find g value question mark. तो हमारा given out to find तो हो गया. फॉर्मूला आपने जस्ट फाइंड किया. व्हाट इज द फॉर्मूला विच इज सुटेबल? s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ये मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला है इसके लिए. अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट विल आई गेट? s की जगह पे 5 लिखेंगे, हाफ g हमें फाइंड करना है, t का वैल्यू इज ऑल्सो 5, सो 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर. ओके, cancellation क्या होगा? This 5 will cancel with this 5 and you'll get 1 equals to half into g into 5. We have to find g, therefore g will be equal to, you can keep g on one side, या तो फिर आप इसको और ऐसे कर सकते हो, 2 shift to other side is equal to g into 5, and then finally therefore g is equal to 2 divided by 5.
2 divided by 5, if you solve, is 0.4 meter per second square. This is the acceleration due to gravity on that planet. You can write this answer in statement. The required acceleration due to gravity on the planet is 0.4 meter per second square. Statement में लिखना, ठीक है? So this is your first question based on free fall वाला formula. Okay? As I've discussed, based on these formulae, we have got two questions. एक हमने देख लिया, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या है क्वेश्चन में? दिस क्वेश्चन नंबर 5 का ए. ऑब्जेक्ट है, वो गिर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस में, वर्टिकल हाइट फ्री फॉल में है. 5 सेकेंड टाइम इज गिवन, 5 मीटर डिस्टेंस इज गिवन, एंड यू आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट. जिस प्लैनेट को गिर रहा है, तो हम टाइम लिखा गिवन में, डिस्टेंस लिखा हमने, जी हमें फाइंड करना है. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड. वी हैव सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड देन वी हैव सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ जी. दैट इज फाइनली हमें आंसर लिखना है स्टेटमेंट में, ठीक है? ऑन सिमिलर फॉर्मूले वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन पहले वाला फॉर्मूला है. What is the question now? This is question 5th ka D. An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meters. What is its initial velocity? How long will the object takes to come back to the earth? Assume the value of g as 10 meter per second square. Look at here. Vertically upward आप फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को, उसका हाइट 500 मीटर तक जाता है ऊपर. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मतलब u फाइंड करना है. एंड वो कब तक, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. तो टोटल टाइम पूछा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. सी, ड्यूरिंग फ्री फॉल एनी ऑब्जेक्ट गोइंग अपवर्ड, जो टाइम ऊपर जाने का रहता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने का रहता है. पहला चीज याद रखो, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो अप, फ्री फॉल की बात करो, एंड कम डाउन विल रिमेन सेम. तो आप कोई भी एक टाइम फाइंड कर लोगे, उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपको टोटल टाइम मिल जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट, एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी. आपने इसको जो भी इनिशियल वेलोसिटी दिया ऊपर फेंकने के लिए 500 मीटर तक ऊपर गया, एंड रिवर्स कर दो, एनी ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम 500 मीटर हाइट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा. यहाँ पर रिलीज्ड, जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा यहाँ पर, सेम उसको ऊपर फेंकने के लिए इनिशियल वेलोसिटी रहेगा. आई विल रिपीट वंस अगेन. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो विथ इनिशियल वेलोसिटी, वो 500 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है? तो ऊपर जाके तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. बट अभी उसको रिवर्स कर दो, आप 500 मीटर से आप उस बॉडी को रिलीज कर रहे हो. जब 500 मीटर से उस बॉडी को रिलीज करोगे, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विल बी सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी जितना हमें ऊपर फेंकने की जरूरत पड़ी है, ठीक है? मीन्स आई कैन मेक दिस सम वेरी सिंपल. इसको बहुत सिंपल सोल्यूशन हम कर सकते हैं. कैसे? हम अज्यूम करेंगे कि चलो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं 500 मीटर में. यहाँ से बॉडी को रिलीज कर रहे हैं और वो 500 मीटर में जा रहा है. हालांकि क्वेश्चन में बोला ऊपर फेंक रहे हैं, तो हम इसको उल्टा लेके सॉल्व करेंगे और फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, व्हिच विल बी सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड. यू हमने 0 लिया. हाइट यानी वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता है 500 मीटर है, ठीक है? ये दो चीज पता है. जी का वैल्यू भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. आप बोलोगे सर यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है. रिमेंबर, दिस इनिशियल वेलोसिटी विल बी सेम एज द फाइनल वेलोसिटी जब हम रिलीज करेंगे. ओके, सो आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम. अब देखो, ये गिवन और टू फाइंड है. आप जरा देखिए जो फॉर्मूला हमने लिया हुआ यहाँ पे कौन सा वाला सुटेबल बैठता है. विच फॉर्मूला इज मोस्ट सुटेबल ओवर हियर? अगर आप चेक करोगे तो आपके पास जी वैल्यू है, आपके पास हाइट है, और आपको v फाइंड करना है. मींस दिस इज द मोस्ट, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला ओवर हियर. तो हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. इसीलिए हमें फ्री फॉल का फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम होना चाहिए. नहीं तो हम क्या करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, फिर वैल्यूज डालेंगे, उतना बढ़ाइए. ये डायरेक्टली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. v स्क्वायर इक्वल टू 2gs. g का वैल्यू 10, s का वैल्यू 500. सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? दिस इज v स्क्वायर. v स्क्वायर इक्वल टू 10,000. Now, if I want to find v, therefore we'll have to take square root of 10,000. And what will be square root of 10,000? It will be 100 meter per second. This is v.
but this v and the initial velocity is going to remain same. तो आपका आंसर रहेगा we have to throw this object with the initial velocity of 100 meter per second so that it reaches to the height of 500 meter. ये आपका हो गया पहला आंसर. दूसरा आंसर पूछा है how long will the object take to come back to the earth? Means you're asked to find the total time. बॉडी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा. बट जैसा मैंने आपको बोला ना, फ्री फॉल में जितना टाइम ऊपर जाने का होता है उतना टाइम नीचे जाने का होता है. तो यू फाइंड एनी वन टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यू विल गेट द टोटल टाइम. सो गिवन दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास, हाउ कैन आई फाइंड टाइम? अगेन आई विल टेक यू बैक टू द फॉर्मूला. जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूला and find out which is the most suitable formula. Let's start from the kinematical equation number 1 for free fall. V हमें मालूम पड़ गया, G हमें मालूम है, T फाइंड करना है ना. V हमें मिला ना 100, G का वैल्यू 10 है, टाइम फाइंड करना है. We can easily get it. We can very easily get it. Okay. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले भाई? We are going to use this formula. V is equal to GT. This is first kinematical equation. V का वैल्यू 100, G का वैल्यू 10, टाइम फाइंड करना है. Therefore, time is equal to 100 divided by 10, which is 10 seconds. But ask yourself the question, is this the actual answer? This is the time taken by the body to go up. But यहाँ पे लिखा है, how long will the object take to come back to the earth? तो आपने अभी एक ही साइड का टाइम फाइंड किया, ऊपर जाने का, नीचे आने का भी टाइम रहेगा. Therefore, the total time taken will be twice of the time taken to go up, which is 2 into 10 is equal to 20 seconds. These two are the answers जो आपको स्टेटमेंट में लिखना है. The required velocity is 100 meter per second and the required time is 20 seconds. स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है. सो आपने देखा कि A and D are based on the formula जो हमने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया. ठीक है. ये फॉर्मूले पे ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड फ्री फॉल का. यस, देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर ई. दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन दीस. तो 3 क्वेश्चंस हमारे जो एक्सरसाइज के हैं इसके बेस पे. लेट अस सॉल्व द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्री फॉल फॉर्मूले. अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड. Assuming G value as 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. Okay. Time given 1 second is time. G value given. Height आपको पूछा हुआ. Speed and height. Speed on reaching the ground and height. These things are asked. So now let us start writing solution में. मैंने आपको बोला what are the steps. सबसे पहले आपको लिखना है टाइम जो गिवन है. गिवन टाइम इज 1 सेकेंड. उसके बाद G वैल्यू इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ यू आर आस्क्ड 2 थिंग्स टू फाइंड. स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो फाइनल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द हाइट. वर्टिकल डिस्टेंस लो या हाइट लो, दे आर वन एंड द सेम. आई हैव टोल्ड यू. S इक्वल टू H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये आपको फाइंड करना है. ना अब मैं वापस फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूँ. आप सोचो, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन था V इक्वल टू GT, दूसरा था S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर और तीसरा था V स्क्वायर इक्वल टू 2GS. व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला ओवर हियर? सबसे पहले अपने को V फाइंड करना है. V फाइंड करने के लिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इज सुटेबल. V इक्वल टू GT. G का वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू 1, 10 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द फर्स्ट आंसर वी गॉट. इट्स सो सिंपल. सी. Okay, you just need to analyze what formula to be used where. First आ गया हमारा, we got velocity. Now we are asked to find what is the height or vertical distance. Again, ये सब मालूम है, V भी मिल गया. तो अब आप कौन सा वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, which will be easily giving you the answer फटक से. आप देखो, सेकंड भी यूज कर सकते हो, थर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको हाइट फाइंड करना है. ओके, यू कैन यूज सेकंड. S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर. G और T दोनों का वैल्यू मालूम है, S मिल जाएगा. और V स्क्वायर इक्वल टू 2GS. V भी मालूम है. इधर सेकंड काइनेमेटिकल और थर्ड कोई भी एक. लेट मी यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सेकंड इज S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर. हाफ G का वैल्यू 10 इंटू टाइम 1 सेकेंड स्क्वायर है. तो फाइनल आंसर, यू नो, 2 1 2 5 5 मीटर इज द फाइनल आंसर. सो ये वाला और ये वाला हमारे आंसर है. आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना है
The required velocity is 10 meter per second and the required height is 5 meter. So these are the three questions which were based on free form. Okay. अब तीनों को एक बार वापस से हम देख लेते कौन से तीन क्वेश्चन थे भाई. They were question number A, D, this is A, fifth का A, fifth का D and fifth का E. Okay. These three questions were based on free form. Now let's move next. If you have any doubts or anything you want more clarification, you can send me messages or you can chat with me. Okay. I'm Neeraj sir on Vision Educare Academy ID. You can send me the message. Now these are the formulae based on which we have 4 more numericals in the exercise. पहला वाला है W equal to mg, weight वाला formula. दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है. Let me number them. W equal to mg, small g equal to gm by r square, F equal to gm1 m2 by r square. Okay. Now the first question which is based on these formulae is question number C. The mass and weight of an object on Earth is 5 kg and 49 Newton respectively. ये mass है, ये weight है. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of the Earth. So the ratio of acceleration due to gravity is known, 1/6. G on Earth and G on Moon का जो ratio 1/6 है, ये mass है, ये weight है. मतलब let me write down the given first. I'll do the solution over here. Given में सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग mass of the body Earth पे है. Mass on Earth is 5 kg. Weight on Earth is 49 Newton. Okay. Mass भी मिला, लिखा है Earth पे. E मतलब Earth. मैंने E लगाया ना. E means Earth. Okay. Now you're asked to find what will be their values on the moon if the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the Earth. So gm मतलब acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that of ge, which is Earth. This value is given to you. ठीक है? If gm equal to 1/6 of g, this also means what? Therefore, थोड़ा rearrange करते हैं. gm upon g will be 1/6. है ना? Acceleration due to gravity on moon divided by Earth is 1/6. ये हमें given है. You are asked to find what will be the mass of the body on the moon, mm, and what will be the weight of the body on the moon, wm. So before we go in detail, mass के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. Mass of the body is intrinsic property, and you already know mass is the measure of inertia, which never changes. आप कोई भी planet पे जाओगे, the mass of the body will remain same. तो आप यहाँ लिख सकते हो. Mass is the measure of inertia. यहाँ लिख देते हैं. Mass of a body is the measure of inertia or matter, and therefore it is always constant. Same for a body. Mass constant है, मतलब वो change होने वाला नहीं है. तो mass on the moon or mass on the Earth of the body is going to remain same, which is 5 kg. ये change नहीं होगा. तो भाई क्या change होने वाला है? Weight change होने वाला है. और अगर weight change होने वाला है, 1 second guys. All right, so you see m equal to me equal to 5 kg. Now the second formula that we're going to use is weight वाला formula, जो मैंने आपको दिया. W equal to mg. That is the basic formula. Weight of the body on Earth or weight of the body on moon, mass of the body on moon, g of the body on moon. Now you know mass is same. फिर भी लिख देते, कोई बात नहीं. We equals to MEGE. Okay. If this is equation 1, this is equation 2, divide करते हैं हम लोग. Wm by We equals to mm gm upon MEGE. Okay. Substitute करते values.
वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून हमें फाइंड ही करना है. वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ 49 न्यूटन इज गिवन. मास ऑफ द बॉडी ऑन मून एंड मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ आर सेम, एज यू नो, तो कैंसिल हो जाएगा. gm upon g is 1/6. You can see that, right? 1 second. Yeah. So now, therefore, Wm will be equal to 49 divided by 6. You solve it, you know what will be the answer. It will be close to somewhere 8.17. Directly I'm writing the answer. Please write down this answer in statement, okay? The weight of the body on moon is 8.17 Newton, okay? So you see, this question is based on the first formula that I've given you, W equal to mg, okay? Likewise, remaining 3 questions are based on these formulas, g equal to gm by r square. This you know, acceleration due to gravity on the surface of the earth. This is the gravitational force formula from Newton's law of gravitation. So now what I'll do is I'll give you the hint. We'll read the question. I'll be giving you the hint and you will try to solve it on your own. Question number B. The radius of a planet A is half the radius of the planet B. Okay. So solution mein it is clearly given. The radius of planet A is half the radius of the planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B? So that the value of G on B is half that G on A. You are given the mass of planet as ma or planet A. You are asked to find mb, mass of the planet on B. तो देखो आप ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है, it is definitely going to be solved by this formula. Acceleration due to gravity on the surface of the earth or on the surface of body. The thing is, because there are 2 planets given over here, यहाँ पर 2 planet है, तो हम 2 फॉर्मूला लेंगे. पहले planet A के लिए लेंगे, ये planet A वाला फॉर्मूला हो गया, जिसको हम फॉर्मूला नंबर 1 बोलते हैं, और दूसरा रहेगा planet B के लिए, ये रहेगा ये वाला फॉर्मूला. करना क्या आपको, डिवाइड 1/2, आपको एम बी फाइंड करना है, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो आपको क्या मिलेगा, जी ए डिवाइड बाई जी बी इज इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन जी एम बी. जी जी कैंसल्स. अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा. अब देखो ध्यान से, तो एम ए अपॉन एम बी ये हुआ, और ये हो गया आपका आर बी अपॉन आर ए द होल स्क्वायर. सी द वैल्यूज, ये एम ए अपॉन एम बी में आपको एम बी फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है. आर बी अपॉन आर ए इज देयर, आर बी अपॉन आर ए इज देयर, जी अपॉन जी बी इज देयर, ये भी आपको ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है, एंड यू गेट द आंसर. सो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग इट फॉर यू टू सॉल्व and see if you can get the answer. Okay. Similarly, we go to the next question based on the formula that we've discussed. Question number F and G. F and G दोनों जो questions है, they are based on absolutely ये वाले formula पे. F is equal to G m1 m2 upon r square. ये फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मिला है. ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है दोनों जगह पे. अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ये वाला, यू गॉट हियर द मास ऑफ अर्थ एंड मून. ये अर्थ का मास है, ये मून का मास है. उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून इज गिवन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून m1 m2 इज गिवन टू यू. यहाँ पे m2 रहेगा, m1 m2 गिवन, डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन, ये वाला. यू जस्ट g का वैल्यू इज नोन टू यू, 6.67 10⁻11. आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. एक बार वापस देख लो, f का वैल्यू फाइंड करना है. g का वैल्यू ये है, m1 का वैल्यू ये है, m2 का वैल्यू ये है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है. दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स. ठीक है, तो आप पूरा गिवन लिखेंगे, फिर टू फाइंड फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड आंसर. F and G both are based on the same formula. ये G है, इस पे भी यही फॉर्मूला यूज होने वाला. F equal to G m1 m2 upon r square. R is a distance. Okay, check out here. यहाँ पर आपको मास ऑफ अर्थ दिया है m1,
मास ऑफ सन दिया है m2, sorry, the distance given, not mass. Mass of earth is given, the distance between them r is given, gravitational force is given, gravitational force ये दिया है f. What is the mass of the sun? m2 mass of the sun ले लो. If m2 is the mass of the sun, ये फाइंड करना है. तो रीअरेंज करके अगर m2 mass of the sun है तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे क्या होगा, f into r square, because you are asked to find m2. Let us say m2 is the mass of the sun. So fr square, okay, डिवाइड बाय g into m1, ये फॉर्मूला होगा m2 का. आप देखो ध्यान से, तो f नोन है, ये फोर्स है आपका 3.5 into 10 is 22 न्यूटन. डिस्टेंस ये है, f मालूम है, r मालूम है, g का वैल्यू ये है, मास ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन. ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ऑफ कोर्स आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. अगर आपको नहीं मिलेगा तो वी विल सी दिस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, बट ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस ऑन योर ओन. ओके, सो आज के इस लेक्चर में हमने स्टेट बोर्ड के ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूरे देखे हैं, स्टार्ट टू एंड. कौन से फॉर्मूले के बेस पे है, ओके, कौन सा कहाँ यूज करते हैं. उसमें से हमने 7 में से हमने 5 सॉल्व किए, 2 आपको दिए गए हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए. सो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप सॉल्व कर लोगे. आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, ठीक है. टेक केयर, विल मीट अगेन, सी यू सून, बाय.